توشہ فوجداری کارروائی کیس عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ چیف جسٹس عامر فاروق کیا بینظیر بھٹو کے واقعے کو دہرانا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے ایسا کہا، آپ کچھ لوگ آئیں تاکہ ایسی صورتحال ہی نہ بنے۔ چیف جسٹس کے ایسے ریمارکس تھے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے خرم ملک سے۔ جی خرم، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل ایسے جی کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کی، جس کے بعد عمران خان کے وکلا نے جو عمران خان سے مشاورت کے لیے وقت دیا تھا، اس میں انہوں نے مشاورت کرنے کے بعد عدالت سے مزید 4 ہفتوں کا وقت طلب کیا ہے، جس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہنا تھا کہ پھر ہم ٹرائل کورٹ سے کہتے ہیں کہ وہ اختیاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دیں۔ اس کا 4 ہفتے میں اختیاری قرار دینے کی کارروائی بھی مکمل ہو جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب عمران خان 9 مارچ کو ہائی کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوں گے، جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ میں ایسا کوئی آرڈر قطعی طور پر جاری نہیں کر سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان ٹرائل کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ٹرائل کے لیے اتنا وقت تو کسی طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ عمران خان کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عمران خان کی ہائی کورٹ میں 9 مارچ کی پیشی 3 بجے کی گئی ہے، جبکہ عمران خان صبح ٹرائل کورٹ میں پیش ہو جائیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اب عمران خان یہی چاہتے ہیں کہ جج عمران خان کے گھر پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے کیس کی سماعت کرے، جبکہ وکیل نے کہا کہ عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے، وہ 4 ہفتوں تک پیش ہونے کے لیے تیار ہے، جبکہ عمران خان کو پیش ہونے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا جائے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پھر میری 2 ماہ والی بات تو درست ہوئی۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی وارنٹ منسوخی معاملے پر دلائل سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر دیا ہے، کیونکہ فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ جی یہ بتائیے گا خرم ملک، یہ ریمارکس میں سامنے آیا کہ ابھی انتظار کیا جائے گا کہ وہ ٹرائل کورٹ کے حوالے سے اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں جو 3:15 بجے کا وقت دیا گیا تھا، اس کے بعد یہ فیصلہ ابھی محفوظ ہے اور اس کے بعد توقع ہے کہ آج یہ سامنے آ سکتا ہے فیصلہ؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ بھی سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں بھی اس کیس کی سماعت جاری تھی اور وہاں پہ بھی سماعت میں صرف اسی لیے وقفہ کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کیس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اسی کی روشنی کے تناظر میں یہاں پہ بھی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو سیشن کورٹ کا انتظار کیا جائے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ خرم، یہ بتائیے گا کہ اس وقت مناظر کیا ہے، کیا سیاسی طور پر کیا صورتحال ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں پر موجود ہیں کیونکہ وکلاء کی ٹیم تو یقینی طور پر آئی ہوگی؟ جی بالکل، وکلاء کی ٹیم تو یہیں پہ، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں سے کوئی بھی اس ٹائم یہاں پہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا جنرل رفیق یہاں پہ بنایا گیا۔ محض وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ قانونی طور پہ عدالت میں جو سماعت کیس میں پیروی کر رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو انہوں نے دلائل دیے، اس میں بھی سماعت میں 2 بار وقفہ کیا گیا اور اس میں جو عدالت میں وکلاء نے ٹائم لیا تھا کہ وہ عمران خان سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کب پیش ہوں گے، تو مشاورت کے بعد جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو 4 ہفتوں کا وقت چاہیے، جس پر عدالت نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 4 ہفتوں کا وقت دے دیا جائے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ پھر ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کو یہ ہدایت جاری کر دیتے ہیں کہ وہ ملزم اگر پیش نہیں ہو رہا تو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جائے۔ تاہم یہ تمام باتیں جو عدالت میں دلائل دیے گئے، اس پہ فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنائے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کتنی دیر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ جی ابھی اس فیصلے کو سنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے تک متوقع کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو سنا دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ خرم۔ توشہ فوجداری کارروائی کیس عمران خان کی وارنٹ منسوخی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ میں کیا ہوا، یہ ریمارک سامنے آئے چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
गुजरांवाला में इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना इंडस्ट्री एरिया गुजरात के मुकदमे की समाअत की। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पेश न हुए। वकला ने हाजिरी की मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हुकूमती अमूर की वजह से राना सनाउल्लाह आज अदालत पेश नहीं हो सकेंगे। आइंदा पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाएंगे। SHO और DSP में पेश हुए और फाजिल अदालत को वारंट की अदम तामील का से आगाह किया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने केस का फैसला सुनाते हुए राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और DPO गुजरात को राना सनाउल्लाह को 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि मुल्जिम के वकला का पेश होना बताता है कि राना सनाउल्लाह को आज केस का इल्म था। पुलिस ने अदालत को बताया उन्होंने राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद और इस्लामाबाद तलाश किया मगर वो ना मिले। वज़ीर आज़म का गरीब आवाम को महंगाई से बचाने का बड़ा फैसला। महंगाई के सताए गरीब आवाम के लिए बड़ा रमजान पैकेज तैयार। रमजान पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहमी करने की मंजूरी दे दी गई है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पहली बार गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी का ये अपनी नौयत का पहला पैकेज होगा, ऐसा कहा गया ब्रीफिंग में। मजीद जानते हैं नबील नकवी से। जी नबील नकवी, क्या तफसीलात हैं इस पैकेज के हवाले से? जी बिल्कुल, रमजान मुबारक की आमद से पहले ही गरीब अवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतहाई अहम इजलास हुआ है जिसमें महंगाई से सताए गरीब अवाम के लिए बड़ा रमजान पैकेज तैयार कर लिया गया है। जबकि रमजान पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब में रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के जायजे का इजलास हुआ है जिसमें पहली दफा ये फैसला किया गया कि पहली दफा गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी का ये अपनी नौयत का पहला पैकेज है जो दिया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म की खसूसी हदायत पर मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज जो है वो तैयार कर लिया गया है। जबकि पहले मरहले में सूबा पंजाब में गरीब तरीन लोगों को खसूसी रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम किया जाएगा। जबकि वज़ीर आज़म की गरीब घरानों को रमजान पैकेज के तहत आटे की फराहमी पर जामिया एक अमली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि माह रमजान में रोजेदारों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। पंजाब मॉडल की तर्ज पर मुल्क भर में रमजान पैकेज की गरीब आवाम को फराहमी के लिए वफाक सूबों को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की रमजान पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म को उन्होंने ब्रीफिंग दी है। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन अजहर नकवी के अलावा सेक्रेटरी फूड और दीगर आला काम भी इजलास में शरीक हुए। जी नबील, ये बताइएगा कि रमजान पैकेज में मुफ्त आटे के अलावा दीगर महंगी अशिया में रिलीफ देने के हवाले से क्या कुछ रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आज ये इजलास हुआ है जिसमें खास तौर पे रमजान मुबारक में फैसला किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो है रिलीफ दिया जाएगा। तो अभी तक जराये के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि आटे के बाद जो रमजान मुबारक में दीगर अशिया खुर्दोनोश होती हैं, जो चीजें शहरी और अफ्तारी में ज्यादातर जो लोग इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे जो पंजाब में पहले भी हम देखते थे कि रमजान बाजारों में जो खास खसूसी तौर पे रिलीफ दिया जाता है, तो उस हवाले से भी जराये हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 रोज तक उसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा। उनके हवाले से भी रमजान बाजारों के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नबील नकवी। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी 2 रोजा मुज़ाकरात। अमरीकी सफारतखाने ने एलामिया जारी कर दिया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात 6 मार्च को इस्लामाबाद में हुए, ऐसा कहा गया एलामिया में। इस हवाले से मजीद जानेंगे फैसल हकीम से। जी फैसल हकीम, बताइएगा एलामिया में मजीद कुछ कहा गया है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। फैसल हकीम हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात 6 मार्च को इस्लामाबाद में हुए हैं और उसके हवाले से अमरीकी सफारतखाने में एलामिया जारी किया गया है। जानते हैं फैसल हकीम से। हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जी फैसल हकीम, बताइएगा जो पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात हुए, एलामिया की क्या तफसीलात हैं, क्या कुछ कहा गया? जी अमरीकी सफारतखाने जो एलामिया जारी मुताबिक मुज़ाकरात 6 और 7 मार्च को इस्लामाबाद में हुए। 2 रोजा मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की क़यादत कायम तान राब्ताकार इंसदाद दहशतगर्दी क्रिस्टोफर लैंडबर्ग ने की और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा सैयद हैदर शाह ने की। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात में खित्ते की सूरत-ए-हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के अमूर ज़ेर गौर आए। 2 रोजा मुज़ाकरात में लताई और आलमी अमन को दरपेश खतरात का जायजा लिया गया। इंतहा पसंदी गर्दी की माली मामलत की बंदिश समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। जबकि इसके अलावा
दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मावनत के प्रोग्राम के दोबारा इजरा के हवाले से भी बातचीत हुई और इस हवाले से मुख्तलिफ निकात गिरफ हो रहा है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक से इस अज़्म का इज़हार किया कि इलाकाई और आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरक किरदार अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फैसल हकीम। शब बरत आते ही फूलों और पत्तियों के रेट बढ़ गए। पत्तियां 400 रुपए किलो और फूल 650 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सच न्यूज किरण फातिमा से। जी किरण। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है वो शब बारात है और लोग अपने प्यारों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज की रात जो है वो अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, वहाँ पर फातिहा ख्वानी करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर गुलपाशी भी की जाती है। इस वक्त मैं फूलों की दुकान पे मौजूद हूँ, दुकानदार से जानेंगे कि क्या रेट चल रहे हैं और इसके अलावा जो है आम दिनों के मुकाबले में आज इनकी दुकानदारी कितनी जो है वो होती है। जी बताइएगा कि क्या रेट चल रहे हैं फूलों के और आज आम दिनों के मुकाबले में कितनी दुकानदारी हो जाती है? आम मुकाबले में दुकानदारी आज अच्छी खासी होती है माशाल्लाह से, और लेकिन आम दिनों के मुकाबले से रेट भी आज डबल होते हैं। जैसे कि आज के रेट हमारे 400 रुपये किलो हैं फूलों के, पत्तियों के, और फूलों के रेट 650 रुपये किलो है होल सेल के। अब आप ये देख सकते हैं कि महंगाई के हिसाब किताब से दुकानदार भी बहुत ज़्यादा परेशान है और साथ साथ आवाम उससे ज़्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, आपने जाना कि आम दिनों के मुकाबले में जो है वो आज काफ़ी जो है वो फूलों की कीमतों में इजाफा होता है, लेकिन फिर भी लोग अपने प्यारों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो यहाँ से फूल खरीदते हैं और अपनी प्यारों जी बहुत शुक्रिया किरण। शब बरत के मौका पर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। कराची के कब्रिस्तानों में क्या इंतजामात किए गए हैं, इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद इजाज से। शाहिद बताइएगा। है और लोग अपने प्यारों से मिलने कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। फूलों पत्तियां समेत जो है कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। कोई फातिहा ख्वानी करता हुआ नजर आ रहा है, कोई कब्र की कोई सफाई करता हुआ नजर आ रहा है, कोई अपने प्यारे से खड़े होकर जो है दुआ करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ बावजूद बात करते हैं कराची के मुख्तलिफ जो कब्रिस्तान है वो आज के दिन जो है एक रौनक लगी हुई नजर आती है। आज एक मुकद्दस का दिन है और यहाँ पर जो है लोगों ने अपनी प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में लोग जो है कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। और दूसरी जानिब ये भी बात की जाती है कि कब्रिस्तानों के अंदर अगर बात करते हैं कि एक रश नजर आता है और दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर तमाम तर चीज़ें की जाती हैं। खास तौर पर रात में लाइट का इंतजाम किया जाता है और इसके बावजूद जो है मुख्तलिफ बात करते हैं कब्रिस्तानों की। कराची के सही बड़े बड़े कब्रिस्तान मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपने प्यारों से मिलने जाते हैं। इस वक्त मैं भी यहाँ पर एक यासीनाबाद कब्रिस्तान है यहाँ पर भी मौजूद हूँ और मेरे हमरा भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कोई फातिहा करता हुआ नजर आ रहा है, कोई कब्र साफ करता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ा हुजूम और रश नजर आता है। इसके बाद सानिया बारहान खेतरान जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। सानिया बार खान से मुतालिक सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का हल्फिया बयान रिकॉर्ड हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुल गनी काकड़ से। ब्यूरो चीफ कोयटा है। अब्दुल गनी काकड़ बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं। देखें, कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट 12 की अदालत में सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान को पेश किया गया है पुलिस की जानिब से, और इस दौरान उनका दफा 164 के तहत उनका जो हल्फिया बयान है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह कुछ ही देर बाद वहाँ पे जो अहम इसमें डिपेंडेंट थी इस केस के हवाले से गरनाज बलोच वो भी पेश की गई क्राइम ब्रांच की जानिब से, और फिर उनका भी बयान जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड कराया गया। इस रिकॉर्ड के बाद बयानात की रिकॉर्डिंग के बाद मजीद जो समाअत है वो मुलतवी की गई। अब्दुर्रहमान खेतरान को सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत के अहाते में यहाँ पे पेश किया गया। इस दौरान पुलिस की बारी नफरी। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।